one more important disease of eye that is called as a trachoma. तो ट्रैकोमा इज नथिंग बट ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कॉज बाय क्लैमिडिया ट्रोकोमेटिस. तो अनहाइजीनिक मेंटेनेंस के वजह से देर इज अ लीड्स टू द इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टिवा, इन्फेक्शन ऑफ द लीड्स, ओके, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द एक्ट्रोपियन, यानी कि जो लिड मार्जिन जो है ना, ट्रैकोमा एक डिसीज़ है, आई डिसीज़ है, बट अनहाइजीनिक मेंटेनेंस की वजह से, हाइजीनिक मेंटेनेंस अगर नहीं रहेगा, डेफिनेटली देर इज अ इन्फेक्शन लीड्स टू द इन्फेक्शन पासेस टू द कंजक्टिवा लीड एंड लीड्स टू द एंट्रोपियन, ओके, यानी कि जो लीड मार्जिन जो है हमारी, जो हमारे आई लिड्स हैं वो अंदर की तरफ, आँख के अंदर की तरफ आने लगते हैं. एंड जो आई लैशेज है आई लिड के ऊपर, डेफिनेटली जब आई लिड जब अंदर आएगा तो आई लैशेज भी इनवर्ड्स उनका हो जाएगा, यानी कि जो आउटवर्ड्स जो रहते हैं उनका डायरेक्शन आउटवर्ड्स रहता है वो इनवर्ड हो जाएगा एंड लीड्स टू द रबिंग ओवर द कॉर्निया एंड दैट लीड्स टू द कॉर्नियल ओपेसिटी. ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रैकोमा. तो अनहाइजीनिक मेंटेनेंस, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन के वजह नहीं होगा तो लीड्स टू द इन्फेक्शन. ये सभी की वजह से ट्रैकोमा डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है पर्सन को. ओके, एंड इट इज़ अ कॉन्टेजियस एज वेल, जैसे कंजक्टिवाइटिस जैसे कॉन्टेजियस वगैरह रहता है ना, इन दैट सेम वे ट्रैकोमा इज ऑल्सो अ contagious. Okay, तो introduction, definition, there is incubation, their incubation period, causes, pathophysiology, clinical feature, risk factor, diagnosis, management, transmission, how it transmit, okay, complication, prevention as well we will cover in this particular class. Okay, so let's see the introduction. First of all, introduction of trachoma. Trachoma बहुत ही interesting topic है, जैसा ऐसे, but definitely it is a leading cause of our blindness. Okay, if we are not treating in their initial state, definitely that leads to the blindness. Okay, so irreversible blindness it causes. Okay, you should remember this. Trachoma leads to the blindness, and this kind of blindness, what kind of blindness it produces? Blindness which is irreversible. Okay, so trachoma is a disease of the eye caused by infection with the bacterium Chlamydia trachomatis. Okay, Chlamydia trachomatis is a bacterial infection causes the trachoma. Okay, it is a public health problem in the many countries. Blindness from the trachoma is irreversible, just I said. And based on the March 29 data, 142 million people live in the trachoma. It is a mention that data just here as a numerical data is maintained here. Okay, over time scar tissues or ulcer can form that leads to the blindness. So no worry, we will cover one by one, just I covering the introduction aspect of this trachoma. The trachoma is the leading cause of our infective blindness globally. Okay, more than 150 million people have been affected. It is associated with the poor hygienic and inadequate sanitation, just I said. Okay, and research estimated shows that 59 countries are endemic and the India has the highest burden of this trachoma. Okay, the trachoma is the world leading cause of our preventable blindness of the infection origin. Irreversible blindness होता है, just you should note this. Okay, now after the covering introduction, let's see the definition. Definition is nothing but trachoma is a disease of the eye that is caused by the infection with the bacterium Chlamydia trachomatis, characterized by the chronic inflammation of the conjunctiva. So already I mentioned that due to unhygienic maintenance, due to poor sanitation, leads to the infection to the conjunctiva, leads to the infection leads. Okay, as soon as infection reaches to the conjunctiva, infection may passes into the lids. Lids में जाने के बाद there is a entropion, corneal opacity, further complication may arise. Okay, so initial treatment अगर रहेगा तो definitely trachoma is a treatable disease, but as soon as it get deeper, no further treatment is possible here. Okay, तो trachoma is a chronic keratoconjunctivitis caused by the Chlamydia trachomatis. Okay, तो केरेटो अगर ये आता है ना तो केरेटो indicates cornea, तो conjunctivitis, trachoma is a chronic keratoconjunctivitis caused by the Chlamydia trachomatis. तो keratoconjunctivitis means यहाँ पे कॉर्निया और कंजक्टिवा दोनों ही you can say affect हुए रहते हैं. That's why there is a term that is called as a keratoconjunctivitis. Okay, तो trachoma is a disease of the eye caused by infection with the bacterium Chlamydia trachomatis, characterized by a chronic inflammation of the conjunctiva. Okay, now let's see the trachoma is a contagious bacterial infection, जैसा I said, and caused by the Chlamydia trachomatis, characterized by hard pustules, inflamed granulation on the inner surface of the eyelids, inflammation of the membranes, and subsequent involvement of the cornea as well. Okay, and that's why we are giving the term keratoconjunctivitis. Okay, there is a hampering of the cornea along with that conjunctiva as well. Okay, the causes Chlamydia trachomatis. The bacteria responsible for trachoma is Chlamydia trachomatis, and there are four
टाइप्स ऑफ क्लैमिडिया ट्रोकोमेटिस, ये जो बैक्टीरिया देयर आर 4 टाइप्स, ओके, टाइप्स ए, टाइप बी ए सी, ओके, दे कॉजेज द ब्लाइंडिंग ट्रैकोमा, बट देयर आर अदर टाइप्स एज वेल फ्रॉम डी टू के, ओके, ये फ्रॉम ए टू जेड में जो फ्रॉम डी टू के जो है ना, दे आर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्लैमिडिया इन्फेक्शन, ओके. So what we have to you can say note this here. So type A, B, BA and C, these are the blinding trachoma, which is dangerous kind of you can say bacterial trachoma, okay. So they causes the blinding, they causes the blindness, okay. So incubation period of this chlamydia trachomatis का जो बैक्टीरिया है ये 5 to 21 डे इसका इंक्यूबेशन पीरियड है. ऑनसेट सबक्वेट बट ऑन मैसिव आउटब्रेक कैन बी एक्यूट, ओके. तो ट्रैकोमा की पैथोफिजियोलॉजी अगर मैं कवर करूँ तो देख सकते हैं उसमें ट्रैकोमा इज अ डिसीज ऑफ द आई विच कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स एंड प्रिवेंटेड बाय द गुड पर्सनल एंड इन्वॉल्वमेंटल हाइजीन, ओके. When there is repeated episode of reinfection, chronic intense conjunctival inflammation occurs, okay, which leads to the tarsal conjunctival scarring. The scarring distort the upper tarsal plates and in some individual leads to the entropion and trichiasis, okay. Trichiasis that is called as a trichiasis means just मैंने आपको बताया ना जो रबिंग होता है ना आई लैशेस का ओवर द कॉर्निया, दैट इज कॉल्ड ट्राइचियासिस, ओके. द एंड रिजल्ट इंक्लूड द कॉर्नियल एब्रेजन, corneal scarring and opacification and ultimately blindness, okay. So इसमें just in short यही mention किया है, when there is a repeated episode of reinfection, chronic intense conjunctival inflammation occurs. So कंजक्टिवा के आपको बहुत सारे लेयर्स रहते हैं, कंजक्टिवा के बहुत सारे टाइप्स हैं, टाइप्स इन द सेंस यू ऑल नो वेरी वेल कंजक्टिवा कवर्स द लीड पोर्शन एज वेल एंड द आई बॉल पोर्शन एज वेल, ओके. तो लीड पोर्शन जो कवर करता है उसका पैल्पेबल कंजक्टिवा और जो आई बॉल जो कवर करता है दैट इज कॉल्ड बल्बल कंजक्टिवा, ओके. दैट यू ऑल नो वेरी वेल. एंड दोनों के बीच में जो पोर्शन है या फिर जो हमारी जो आई लिड्स हैं, आई लिड्स के बीच में जो गैप है वहाँ पे एक कंजक्टिवल स्पेस होता है, ओके. So these are the terminology you should know, as I hope you have covered the topics introduction of eye, okay. तो उसमें डिटेल में बताया ऑलरेडी कंजक्टिवा के पोर्शंस क्या. उसमें कंजक्टिवा के पोर्शन में रहते हैं मार्जिनल, ऑर्बिटल, टार्सल, दीज आर द रीजन्स, ओके. देन फॉर्निक्सिस रहते हैं, फॉर्निसिस, सुपीरियर फॉर्निसिस, इंफीरियर फॉर्निसिस, मार्जिनल फॉर्निसिस, okay. Then orbital fornices, there are number of fornices are there, okay, when we are covering the conjunctiva. तो वही यहाँ पे बात हो रहा है कि टार्सल जो रीजन है उसमें तो जो कोई भी रीजन है कंजक्टिवा का, आइदर मार्जिनल, आइदर ऑर्बिटल, आइदर टार्सल, आइदर सुपीरियर, it all have a kind of 3 layer superficial epithelium layer, then after that fibrous layer है, उसके बाद एडिनोइड लेयर है. एडिनोइड लेयर में लिम्फ टिश्यूज रहते हैं, ओके. तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया क्या करता है, अल्टीमेटली इन्फेक्शन करता है कंजक्टिवा को, और कंजक्टिवा में इन्फेक्शन जाने के बाद जो उसमें एडिनोइड जो लेयर है ना उसमें जो लिम्फ नोड है उसमें स्वेलिंग आती है. स्वेलिंग आने के बाद देर इज़ अ बम्प्स, ओके. बम्प्स इन द सेंस यू कैन से देर इज़ अ जस्ट जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे ना यू विल गेट टू नो बेटर, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द क्लिनिकल फीचर्स. तो वाटरिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन आईज में लगता है, रेडनेस ऑफ द आई, देन म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज में अराइज फ्रॉम द आइज, बिकॉज जो कंजक्टिवा है उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी हैं, ओके. तो क्रॉस लेग ग्लैंड्स है, ओके. देन ऑल्फरिंग ग्लैंड्स है, देयर आर नंबर ऑफ ग्लैंड्स एज वेल, लाइक आई लिड में हमारे जेस ग्लैंड है, मॉल्स ग्लैंड है, ओके. आई लिड्स में हमारे काइंड ऑफ मेबुमियन ग्लैंड है. तो इन दैट सेम में कंजक्टिवा में भी क्रॉस ग्लैंड है, ऑल्फरिंग ग्लैंड्स है. तो दे आर प्रोड्यूसिंग द mucopollulant discharge, okay, as soon as they get infected, okay. So that's why mucopollulant discharge may comes redness of the eye. Why redness? Because conjunctiva एक vascular layer है, okay, and that's why उसमें artery vessels वगैरह रहता है. तो as soon as infection reaches there is a hyper inflammation of the you can say arterioles of the conjunctiva and leads to the redness of the eye, okay. So watering, foreign body sensation, redness of the eye, mucopollulant discharge, these are the symptoms, signs and symptoms may seen in the patients, okay. So mild itching and irritation of the eye and the eyelids may seen, eyelid swelling हो सकता है. photophobia, patient may not tolerate the light sensitivity, lights उसको light से sensitivity होगा. that means कि light as soon as we are focusing the
you can say focusing the light into the eye, definitely the patient cannot tolerate, because there is an infection, and again and again it closes the eye. Okay, and that is called as a photophobia. Okay, fearing of the light. Okay, तो blurring हो सकता है पेशेंट को, माइल्ड पेन हो सकता है आई में, दैट इज कॉल्ड एज आई पेन. ओके, देन रिस्क फैक्टर की अगर बात करें, जस्ट आई सेड कि जितने भी अनहाइजीनिक मेंटेनेंस के जो रीजंस हैं, पोवर्टी है, क्राउडेड लिविंग कंडीशन है, पुअर सैनिटेशन है, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स. एज हो गया, एज इन एरियाज वेयर द डिसीज इज एक्टिव, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन फ्रॉम एज 4 to 6. ओके, एंड सेक्स की अगर बात करें, देयर इज यू कैन से 2 to 6 टाइम हाइयर दैन दैट ऑफ मेन. ओके, यानी कि वुमेन्स में दे आर मोस्टली सीन्स. ओके, फ्लाइज हो गए, peoples living in areas with problem controlling the fly population may be more susceptible to the infection. Okay, then lack of latrines, the population without accessing to working latrines, a type of communal toilets. Okay, communal toilets जो use करते हैं जिस area में, there is again the chances, there is a great chances or great high risk of this trachoma. रिस्क फैक्टर में अगर मैं बात करें, 6D आर देयर. 6D, ड्राई एरिया, डस्टी एरिया, डर्टी एरिया, डंग एरिया. ओके, देन डिस्चार्ज, देन क्राउडिंग और डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ 6D. ओके, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की अगर बात करें, एज मोर इन्फेंसी और चाइल्डहुड में रहेगा, सेक्स कॉमनली इन फीमेल्स, ड्राई एंड डस्टी इन्वायरमेंट रहेगा, एंड लो सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है, अनहाइजीनिक कंडीशन एंड लैक ऑफ सैनिटेशन लीड्स टू द ट्रैकोमा. ओके, डर्टी फेसेस, वी कैन सी द dirty faces and flies causes the trachoma. You can see the, ये जो बच्चू इसमें बैठा है इसमें. ओके, तो you can see the there are number of flies seen over the faces of this बच्चू. Okay, and definitely they are causing the infection and leads to the trachoma. So you can see the again the house fly belongs to the family Mucidae. It is classified as the Musa domestica. They directly affecting the eye. Spreading of the infection, you can see the direct contact with the airborne or waterborne infections, vectors, they are again playing role for the trachoma. Okay, तो स्प्रेडिंग ऑफ द इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, ट्रांसमिशन की अगर बात अभी हम बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक पर्सन जिसको ट्रैकोमा हुआ है, अगेन इफ ये टचिंग इज आई विथ हिज हैंड, डेफिनेटली, एंड दैट टच्ड हैंड इफ ये टचिंग टच द अदर्स पर्सन, डेफिनेटली दे आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयरबोर्न और वाटरबोर्न इन्फेक्शन. अगेन देयर इज अ दिस इज अ कॉन्टेजियस डिजीज, जैसा आई सेड, एंड जो भी उसका यूज मटेरियल होगा, अगर उस किसी पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आया, लीड्स टू द इन्फेक्शन. वेक्टर, अगेन दे आर प्लेइंग रोल. वेक्टर में फ्लाइस, मस्का डोमेस्टिका. ओके, मटेरियल में यू कैन से जो भी काइंड ऑफ वी आर यूजिंग. ओके, तो 5F देखते तो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैकोमा में फिंगर्स हो गए हमारे खुद के, फ्लाइस, फेस एंड फीसेस. फोमिटेस मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट को हम टच कर देते हैं, उसके बाद दूसरा पर्सन वही सेम ऑब्जेक्ट को टच करेगा, दैट इज कॉल्ड एज फोमिटेस. फोमिटेस मीन्स टच इन्फेक्शन पेशेंट, या फिर जो भी इन्फेक्टेड जो बंदा है उसके थ्रू जो टच किया हुआ जो ऑब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोमिटेस. ओके, नाउ WHO ग्रेडिंग सिस्टम, इसमें आप पैथोफिजियोलॉजी एक बेटर व्यू में आप समझ सकते हो. WHO ग्रेडिंग सिस्टम में ट्रैकोमेटस इन्फ्लेमेशन, उसका जो फर्स्ट स्टेज है फॉलिकुलर फेज. ओके, फॉलिकुलर फेज, ट्रैकोमेटस इन्फ्लेमेशन, फॉलिकुलर फेज. नाउ जस्ट मैंने आपको ट्राई भी किया था इसका पैथोफिजियोलॉजी बताने को. द फर्स्ट साइन इज द प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल्स विच आर स्मॉल बम्प्स फॉर्म बाय द स्वेलन लिम्फ टिश्यूज ऑन द बैक ऑफ द अपर आईलिड. ओके, तो जो आईलिड है, अपर आईलिड है हमारे, उसके बीनीथ में हमारी कंजक्टाइवा है, दैट इज कॉल्ड द बल्बार कंजक्टाइवा. ओके, तो कंजक्टाइवा के लेयर में मैंने आपको बताया, देयर इज अ एपिथेलियम लेयर, देयर इज अ एडिनॉइड लेयर, देयर इज अ फाइब्रस लेयर. तो एडिनॉइड लेयर में देयर इज अ लिम्फ टिश्यूज आर देयर. एज सुन एज इन्फेक्शन रीचेस टू द कंजक्टाइवा, जिस लिम्फ टिश्यू जो है हमारे पास उसमें इन्फ्लेमेशन आता है. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फॉलिकल्स. तो स्मॉल प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल्स हो रहा है ड्यू टू द swollen lymph nodes. Okay, swollen lymph tissues present in the conjunctiva. Okay, and sometime extending to the top part of the eye as well. The presence of 5 or more follicles greater than 0.5 mm in size on the conjunctiva lining the back of the upper eyelid is considered grade TF. Okay, तो just what you have to note here कि कंजक्टाइवा में 3 लेयर है, एपिथेलियम लेयर, एडिनॉइड लेयर एंड फाइब्रस लेयर. एडिनॉइड लेयर में लिम्फ टिश्यूज हैं जो कि कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन वगैरह आता है तो उसको फाइट करते हैं, बट इन्फेक्शन एजेंट अगर बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली दे कैन नॉट फाइट विद दैट एजेंट एंड दे
hampers that leads to the inflammation of that lymph tissues and यही यहाँ पे भी यही हो रहा है, इन्फेक्शन कंजक्टिवा में जा रहा है, जाने के बाद जो लिम्फ टिश्यूज है उसमें इन्लार्जमेंट हो रहा है, ओके, एंड लीड्स टू द स्मॉल बम्प्स, ओके, दैट इज स्मॉल बम्प्स, दैट इज कॉल्ड swollen lymph tissues, ओके, एंड ग्रेटर देन 0.5 mm साइज की अगर दैट इज मोर देन 5 और अगर फॉलिकल्स रहेगा और 0.5 mm साइज से अगर ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली दे आर कंसिडर इन द TF ग्रेड, ओके. तो यू कैन सी द हियर इट इज़ अ मेंशन दैट, ओके, रेडनेस आपको पूरा दिख रहा है आई लिड के बीनीथ, जो आप देखोगे तो उसमें आपको ये बहुत सारे काइंड ऑफ अभी जो भी फॉलिकल्स जो रेडी हुए वो स्कारिंग नहीं हुआ है, ओके. एज सुन एज दे गेट स्कार डेफिनेटली एंट्रोपियोन गेट प्रोसीड्स, ओके, एंट्रोपियोन गेट प्रोसीड. तो ट्रैकोमाटाइस इन्फ्लेमेशन इंटेंस TI अगर मैं बात करूँ ये स्टेजेस है फॉलिकुलर के बाद इंटेंस, तो सीवियर डिसीज नीड बी अर्जेंट ट्रीटमेंट. द नेक्स्ट फेज इज स्वेलिंग ऑफ द कंजक्टिवा एंड डेफिनेटली जो मैंने अभी बात किया स्वेलिंग ऑफ द कंजक्टिवा दैट obscures द 50% और मोर ऑफ द व्यू ऑफ द नॉर्मल डीपर ब्लड वेसल्स ऑफ द कंजक्टिवा, ओके. नाउ थर्ड फेज में आपको देखने को मिलेगा ये जो फॉलिकल्स है ना 0.5 mm साइज की जो ग्रोथ जो ज़्यादा हो गई है, आप देखोगे ट्रैकोमाटाइस स्कारिंग यहाँ पे देखने को मिलता है, इंटेंस इन्फेक्शन. नाउ सेकंड फेज में आपने देखा, सेकंड स्टेज में क्या देखा, रेडनेस स्वेलिंग आपको बढ़ जा रहा है, ओके. फर्स्ट स्टेज में आपने देखा कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, सेकंड स्टेज में रेडनेस स्वेलिंग बढ़ जा रहा है कंजक्टिवा के. नाउ थर्ड फेज में आप देख सकते हो देयर इज अ स्कारिंग टेक्स प्लेस, ओके, ट्रैकोमाटाइस स्कारिंग टेक्स प्लेस, okay. Now you can see the trachomatis scarring take place. Intensive infection, bands of scar tissue form within the conjunctiva lining the inside of the upper eyelid, okay, and visible fibrous white bands on tarsal takes place, okay. So you can see this is the white bands which get scarred. As soon as they get scarred leads to the, so you can see this is our scarring takes place, okay. So this is the bands which is formed with our fibrous, okay. दिस आई सेड कि जो भी लिम्फ टिश्यू का जो इन्लार्जमेंट हो रहा है, फाइब्रस जो बन रहा है, ओके, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि स्कार फॉर्म हो गया है. तो ट्रैकोमाटाइस ट्रैचियसिस, द बैंड्स ऑफ स्कार टिश्यू टाइटनिंग कॉसिंग द लिड मार्जिन टू टर्न इनवर्ड्स. जस्ट आई सेड कि एंट्रोपियन इसका कॉम्प्लिकेशन होता है एंड द आई लैशेस टू द रब अगेंस्ट द आई, दैट इज कॉल्ड ट्राइचियसिस. ओवर टाइम दिस रबिंग रिजल्ट इन द एब्रेजन ऑन द कॉर्निया, द क्लियर सेंट्रल कवरिंग ऑफ द फ्रंट ऑफ द आई, ओके. तो ये ऑल नो वेरी वेल सेंट्रल पोर्शन हमारा कॉर्निया होता है. एज सुन एज लिम्फ टिश्यूज जो लिम्फ यहाँ पे जो बना हुआ है उसका दे गेट हार्डन, टाइटनिंग लीड्स टू द काइंड ऑफ बैंड फॉर्मेशन लीड्स टू द स्कारिंग एंड एज सुन एज दे गेट स्कार फॉर्मेशन एज टेक्स प्लेस देयर इज द इनवर्ड कमिंग ऑफ द लीड्स, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ एंट्रोपियन, ओके. सो एंट्रोपियन, एज सुन एज एंट्रोपियन प्रोसीड्स, जो लिड मार्जिन पे जो हेयर्स हैं दैट इज कॉल्ड एज आई लैशेस, दे रब अगेंस्ट ओवर द कॉर्निया, दैट इज कॉल्ड ट्राइचियसिस, ओके, एंड दैट लीड्स टू द एब्रेजन ऑफ द कॉर्निया. सेंट्रल कवरिंग जो भी हमारा कॉर्निया उसमें एब्रेजन होता है, कॉर्नियल ओपेसिटी होती है एंड मेनी मोर कॉम्प्लिकेशन मे सीन, ओके. तो यू कैन सी द होल eye get affected, whole eye get affected, majorly get affected with cornea, because cornea क्या है, अगर cornea what corneas play important role play क्या करते हैं, डेफिनेटली अगर corneal opacity होगा, corneal abrasion हुआ तो जो भी पैरेलल बीम ऑफ जो लाइट आएगा दे विल नॉट उसके जो रिफ्लेक्टिव एरर हो जाएगा, ओके, रिफ्लेक्टिव जो उसकी जो इंटेंसिटी जो रिफ्लेक्टिव पावर है वो रिड्यूस हो जाएगा विद दिस ओपेसिटी और ओपेसिफाइड cornea, okay. तो corneal abrasion can lead to the infection ulcer over the cornea and ultimately opaque scarring that blocks the light from entering the eye and leading to the blindness, okay. So these 4 stages just I covered: trachomatis inflammation, trachomatis for the scarring, okay, then trachomatis trichiasis, then ultimately lastly corneal opacity, okay. So McClannan's classification, again you can see the incipient trachoma, stage of infiltration, hyperemia, palpebral conjunctiva जिसमें देखने को मिलेगा, स्टेज ऑफ फ्लोरोइड इन्फिल्ट्रेशन में मैच्योर फॉलिकल्स, पैपिले, प्रोग्रेसिव पैनस देखने को मिलेगा एंड अल्टीमेटली जो भी मैंने आपको स्कारिंग और जो ओपेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताना वो फर्दर स्टेजेस देखने को मिलेगा. नाउ डायग्नोसिस में देख सकते हो देयर आर रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स: फॉलिकल ऑन द अपर टार्सल कंजक्टिवा, लिम्बल फॉलिकल्स एंड देयर sequels,
टाइप जो टिपिकल टार्सल कंजक्टिवा स्कारिंग्स, तो डायग्नोसिस हाउ यू विल डायग्नोस द पेशेंट्स, तो डेफिनेटली एंट्रोपियन हो रहा है एंड जो भी पर्स आएगा पेशेंट्स के थ्रू डेफिनेटली उसका कल्चर अगर करेंगे और बी डेफिनेटली वी कैन डायग्नोज विद दैट बैक्टीरिया विद दैट पर्टिकुलर पस कि वेदर देर इज अ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्लैमिडिया है, जो भी कुछ बैक्टीरिया वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद देयर पस। ओके, तो इससे डायग्नोसिस मिल जाएगा। ओके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि एलर्जीनिक या फिर वायरल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ओके, फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव डिसीज, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक वगैरह देंगे पेशेंट को। प्रिवेंशन अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन डिसीजेस। ओके, तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव डिसीज देख सकते हो एंटीबायोटिक इज द मेन रोल प्लेइंग मेन स्टे रोल। ओके, तो ओरल एजिथ्रोमाइसिन अगेन दिस इज अ एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ओके, 250 मिलीग्राम का QID 4 times in a day. Okay, then doxycycline 100 mg BD for 4 weeks you have to take as a oral antibiotic, systematic antibiotics you have to take. Okay, then topical base individual like they are cheaper. Okay, as compare with systematic जो भी हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, तो 1% टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, आई ऑइंटमेंट्स दे आर अवेलेबल, तो 4 times डेली आपको लगाना है, अप्लाई करना है फॉर 6 weeks. 20% सल्फेसेटामाइड आई ड्रॉप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट्स, थ्राइस डेली यू हैव टू अप्लाई विद द 1% tetracycline ointment. Okay, then other ointment you should apply, you have to apply ointment at the bedtime only. Okay, so you can see the eye drop आपको देना है thrice daily. You can give the multiple times you the kind of eye drops, but ointment at bedtime only. Okay, other topical antibiotics में you can see the lubricants है, analgesics, बहुत सारे steroid drops है हमारे पास. Okay, so you can give that particular things, but fungal infection में steroid drop नहीं देते हैं because फंगल अगर कॉलियन ओपेसिटी है ना तो डेफिनेटली उसमें हम काइंड ऑफ ड्रॉप वगैरह नहीं देते हैं, ड्रॉप आई ड्रॉप देंगे बट स्टेरॉइड कंटेनिंग ड्रॉप नहीं देंगे बिकॉज फंगल जैसे ही इम्यून सिस्टम हम कम करेंगे ना फंगल इन्फेक्शन वो रैपिड ग्रो होता है. ओके, तो दैट यू टू रिमेंबर. ब्लैंकेट एंटीबायोटिक थेरेपी इन एंडेमिक एरिया टू कंट्रोल इंटेंसिटी एंड सीवियरिटी रेजिमेन 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट पेशेंट को लगाने के लिए बोलना है. ओके, फॉर 7 day फॉर मंथ. तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर अवर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स. तो ट्रैकोमा के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल दे सकते हो. नंबर ऑफ इंटरवेंशन, जो भी कुछ प्रिवेंशन ऑफ ट्रैकोमा रिलेटेड ब्लाइंडनेस रिक्वायर है, नंबर ऑफ इंटरवेंशन लाइक WHO जो पार्टनर्स जो हैं वगैरह उनको फोकस करना है. एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीनिनेस, एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजी के ऊपर. ओके, सेफ स्ट्रैटेजी यू कैन सी द S in the safe strategy stand for trichiasis surgery. Eyelid surgery to correct the trichiasis is important in the people with the trichiasis. So just you have to remember कि जो भी कुछ एंटीबायोटिक पेशेंट को देना, ओरल एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट. ओके, जो भी कुछ एरिथ्रोमाइसिन के जो एंटीबायोटिक्स है, डॉक्सीसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स है, यू हैव टू गिव द एजिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप्स हैव ऑल्सो बी शोन टू वेरी इफेक्टिव. ओके, एनाल्जेसिक ड्रॉप भी दे सकते हैं पेशेंट को. एजिथ्रोमाइसिन इज बेटर दैन टेट्रासाइक्लिन बट इट इज मोर एक्सपेंसिव, दैट टू रिमेंबर. ओके, एजिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस बिकॉज इट इज easy to administer as a single oral dose and it is administration can be directly observed. देन फॉलोड बाय अगर आप देखोगे डेफिनेटली इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इन्वायरमेंटल जो मेंटेनेंस है, हाइजीनिक मेंटेनेंस है, देख सकते हो इसमें सर्जरी है, एंटीबायोटिक्स है, फेशियल क्लीनिनेस है, इन्वायरमेंटल चेंज है, तो ये सभी आपको फॉलो करना है टू प्रिवेंट द काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन अराइजेस by our trachoma. The one episode of trachoma caused by chlamydia trachomatis is easily treated with early detection and use of antibiotics, but repeated or secondary infection can lead to the complication. Includes the scarring of the inner eyelid deformities such as inward folding eyelid, that is called the entropion, and trichiasis may noted, corneal scarring, corneal cloudiness, corneal opacity may seen, and partial or complete vision loss may seen. Okay, so this is the national trachoma control program 1963 में लॉन्च हुआ था to avoid this harmful infectious disease of trachoma. Okay, नाउ प्रिवेंशन वगैरह की बात करें तो सेम थिंग्स कि आपको फेस वॉशिंग, हैंड वॉशिंग, कंट्रोलिंग फ्लाइज, ओके, वेक्टर वगैरह जो मेन जो ट्रांसमिशन के जो वेज हैं वो कंट्रोल करना है. प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, इम्प्रूव एक्सेस टू वाटर. ओके, and no trachoma vaccine is available, so but prevention is possible and that's why trachoma vaccine is not needed because we can prevent this trachoma
worldwide, okay, by maintaining the proper hygienic maintenance, okay. So prophylaxis, we can see the good personal and environmental hygiene, health education on trachoma prevention, use of common toilets and वगैरह, okay, clean water supply for washing, flies control, insecticides वगैरह आपको यूज़ करना है, prevention of recurrent infections and early detection and treatment, they are the one of the most important way to prevent this infection, this is that is called as a trachoma, okay. So that is all about for our trachoma का definition, introduction. There are pathology, important part is there are stages, okay, follicular stages, scarring stages, जो भी कुछ ओपेसिफिकेशन वाला जो स्टेजेस है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड आफ्टर दैट जो MC कैलेंस क्लासिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट है. एंड आफ्टर दैट देर इज अ diagnosis, how we have to diagnose, and signs and symptoms as well, okay. So that is all about for our trachoma.